Hey students, welcome back to the Vishwa International School online teaching. So as you know, first and third chapter we have completed. So now we will start with chapter number 4. So the name of the chapter is metals and non-metals. So I hope you are knowing something about metals and non-metals. So यहाँ पे जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक किसका होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स का. बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें ओके तो ये आया कहाँ से, और ये जो मेटल्स को हमने कहाँ से मीन्स ऑब्टेन किया हुआ है. तो सी सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो वर्ड है एलिमेंट, ये वर्ड आपने पहले में सुना हुआ है स्टूडेंट्स, एलिमेंट. And see one more thing in your homework, today's homework. Today I am giving write 1 to 20 name of the element. See, this is your homework. अब आप क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे होंगे इस सब तो प्राय नहीं होमवर्क दे दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका सबसे बेसिक पार्ट क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट. नेम ऑफ एलिमेंट्स. ओके, कितने एलिमेंट्स? अप टू 20. यू हैव टू राइट 2 times and okay and learn. Two times write and learn. So student, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, नेम ऑफ द एलिमेंट 1 to 20. You have to write 2 times and learn it also. After completing this part, see students, in this chapter we will discuss about 2 parts, metal and non-metal. So first we will discuss about metals, the physical properties of metal and the chemical properties of metal. After finishing the metal, see name of the element, up to 20 name of the element I will write on the board and you have to copy down and learn it and prepare it. Clear? So after finishing metal, I will write the name of the element on the board and you have to write in your fan notebook. So let's start with metal. So student, see metal and non-metal. So in this chapter first we will start with element. See student, so there are total 118 elements. So students, अगर ये क्वेश्चन आपको कोई पूछे how many elements we have, so what we are going to write, there are 118 elements. कितने एलिमेंट है हमारे पास? 118. But apart of 118, only up to 20 we have to learn. 20 तक एलिमेंट हमें आने चाहिए. Clear? Now elements are elements are divided into 3 parts. See, अब एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में. तो सबसे पहला क्वेश्चन, एलिमेंट 3 पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट मेटल, सेकेंड पार्ट नॉन मेटल and third part semi metal. Students, हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को सेमी मेटल भी बोल सकते हैं और मेटलाइट्स भी बोल सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, इन आवर सिलेबस चैप्टर नंबर 4 में दिस पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट सेमी मेटल्स. क्लियर स्टूडेंट? So metals, non-metals we will
semi metals we will not discuss. Why? Because it is not given in our syllabus. So student, there are total 118 elements and the elements are divided into 3 parts. Which one? Metal, non-metal and semi-metal. Remember student, semi-metal it is also called metalloids. Clear? So now we start with metal. See, first part, physical properties of metal. See student, यहाँ पे दिया physical properties of metal. For example, अब मैं आपको बता दूँ metal. ये metal क्या होता है? आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे देना है. आयरन. आयरन क्या है? आयरन is a one type of metal. Clear? Now, see, what are the properties of metal? Metal कैसा होता है? कैसा दिखाई देता है? Now we will talk about only physical property. Metal होता कैसा है? कैसा दिखाई देता है? That part only we will discuss. See, so first part, metals which can be beaten into thin sheet called malleability. See student, यहाँ पे पूरा पार्ट मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट आपकी बुक में ये जो वर्ड है ये दिया हुआ है malleability. अब malleability का मतलब क्या है student? See, for example, हमारे पास क्या अवेलेबल है? आयरन अवेलेबल है. अब आयरन को हम क्या करेंगे? आयरन को हम लोग हैमर से क्या करेंगे? बीट करेंगे. बीट मतलब सी. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या अवेलेबल है? आयरन. देन ओके, हम इसको क्या करेंगे? हैमर. ओके, विद द हेल्प ऑफ हैमर ओके हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे. कैसे? विद द हेल्प ऑफ हैमर. तो जब हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी एक शीट बनेगी. शीट मतलब दिस टाइप. ओके, दिस टाइप शीट वी कैन प्रिपेयर. और आयरन को जब हम लोग चेंज करते हैं इसमें शीट में, ओके, दैट इट इज कॉल्ड malleability. ओके, इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन. आपके टेक्स्ट बुक में malleability दिया हुआ है. ओके, क्या दिया हुआ है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी beaten into thin sheet. Clear? The property of metal which can be beaten into thin sheet. Okay, and that property is called malleability. Clear student? Now next part. See one more thing. Metals are good conductor of heat and electricity. ये जो वर्ड है, ओके, ये तो आपको पता ही है. ओके, metals are good conductor of heat and electricity. See student, इसका मीनिंग क्या होता है? Metals are good conductor of heat and electricity. So in metals, okay, in metal sound can, sorry, in metals the heat can be passed. Clear? In metals the heat can be passed. मेटल में हीट पास होता है और करंट भी पास होता है. फॉर एग्जाम्पल, कैसे? चलो हम ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, ओके, और वो पर्सन को क्या हुआ है? उसको करंट लगा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वो स्विच से चिपक गया है. फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमें क्या करना है? हमें उसको वहाँ से छुड़ाना है. अब हम तो उसको पकड़ेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? we will use one, okay, we will use one wood. हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम अपने हाथों से उसको टच नहीं करेंगे. हम यहाँ पे यूज करेंगे वुड रॉड. एक रॉड यूज करेंगे जो कि किसकी बनी हुई होगी? लकड़ी की. हम यहाँ पे आयरन रॉड यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट. आयरन रॉड यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आयरन से हम उसको छुड़ाते हैं तो हम भी उसमें चिपक जाएंगे. क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? बहुत इजी एग्जाम्पल है स्टूडेंट. सो आयरन रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. See one more example. Okay,
क्या है, सी सपोज दिस इज वन रॉड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन रॉड एंड द रॉड इज मेड अप ऑफ आयरन and now we will provide heat. Okay, now we will provide some heat. तो यहाँ पे जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट, ओके, तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे किसको, रॉड को, सो ये रॉड क्या हो जाएगा यहाँ पे ये रॉड हॉट मतलब गर्म हो जाएगी। बट जब हम यहाँ पे ये रॉड को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये रॉड गर्म होगी और धीरे धीरे करके ये जो ओके हॉट पार्ट होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। मीन्स व्हाट वी कैन से हीट कैन बी ट्रांसफर। अब हुआ क्या स्टूडेंट, यहाँ से तो हमने ये रॉड को गर्म किया, हीट ओके गर्म कहा था यहाँ पे, बट धीरे धीरे करके वो कहाँ पर पहुंच गया, वो पूरे रॉड में पहुंच गया। ओके, दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो होगा क्या, यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, so दैट्स व्हाई हीट कैन बी ट्रांसफर। ओके, और ट्रांसफर हो गई हीट, इसीलिए इट इज अ गुड कंडक्टर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, metals which can be drawn into wire is called ductility or the property is called ductility. See student, अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला मैंने आपको यहाँ बताया था the metal which can be drawn into thin sheet, बट यहाँ पे थर्ड पॉइंट एक ऐसा मेटल जिसका हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वायर, the metals from which a wire can be prepared. Clear student? सी ओके, एक ऐसा मेटल जिसमें हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वायर। देखिए ओके, वायर कैन बी प्रिपेयर, और वायर हम किसका बना सकते हैं, कॉपर का। अब कॉपर क्या है, कॉपर इज द मेटल। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक ओके, आपको समझ में आ गया। सो स्टूडेंट, एक यहाँ पे वायर कैन बी प्रिपेयर, एक ऐसा मेटल, ओके, एक ऐसा मेटल जिससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वायर। आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी वायर है, ओके, हमारे घर में जो भी वायर है जिससे क्या हम यूज करते, क्या मीन्स क्या हम करते हैं, फैन, ट्यूबलाइट, एवरीथिंग। सो दैट वायर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉपर एंड कॉपर इज अ मेटल। तो हमने क्या किया, फ्रॉम द मेटल वायर वी हैव प्रिपेयर्ड। क्लियर? तो मेटल में से हमने क्या किया, वायर प्रिपेयर किया, और जब मेटल में से वायर को प्रिपेयर करते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फोर्थ पॉइंट, metal produce ringing sound on striking is called sonorous. See, अब sonorous का मतलब क्या होता है, जब दो मेटल आपस में टकराते हैं, ओके, when two metals strike with each other. For example, जब दो मेटल आपस में टकराते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, वहां से प्रोड्यूस होता है साउंड। क्लियर? जब दो मेटल आपस में टकराते हैं वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनरस। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, जनरली मेटल्स आर हार्ड। अब ये पॉइंट आपको बताया, ऑल द मेटल्स आर, ऑल जनरली मीन्स 90% द मेटल्स आर हार्ड। सारे के सारे जो मेटल्स है वो क्या है, बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब कठोर, और अदर वर्ड यू कैन राइट, ओके, समझ में आ गया ना। मेटल्स आर जनरली हार्ड। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन आपको लिखा है
वो कितना हार्ड होता है। हार्ड मीन्स कठोर, कड़क। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, द सरफेस ऑफ मेटल्स आर शाइनिंग और लस्टर्स। अब सीख यहाँ भी क्या है, तो मेटल का जो सरफेस होता है, सरफेस मीन्स द अपर लेयर। ओके, मेटल का जो अपर लेयर होता है, ये क्या होता है, ये चमकता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? मेटल का जो अपर लेयर होता है वो क्या होता है, चमकता है, शाइनिंग। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर्स। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ओके, हमने यहाँ पे इसका डिस्कशन पहले भी किया हुआ है। तो ये क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है एक मेटल जो कि क्या होता है, चमकता है। और जो मेटल्स चमकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर्स। क्लियर? ओके, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है शाइनिंग। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, शाइनिंग? एक ऐसा मेटल जो क्या होता है, चमकता है। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ अप टू हियर the properties of metals we have discussed. The properties of metal we have discussed. Now after this one we will start here physical we have discussed. Now we will start chemical properties of metal. So now students, physical properties of metal we have discussed. Now we will start with chemical properties of metal. तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या था, कि कोई भी मेटल कैसा दिखाई देता है। ओके, पर यहाँ पर बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दो एलिमेंट को, जब हम किसी दो चीजों को रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना। ओके, सी रिएक्शन of two metals and new things can be obtained called chemical प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन क्या होता है, जब हम दो मेटल को आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट होने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बट वो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ सो फर्स्ट अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ सी स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखना। ओके, now okay chal, so next part chemical properties of metal. so ye aapko samajh mein aa gaya hoga what is the meaning of chemical property. see now next part abhi maine aapko बताया था reaction of two metals and something new can be produced. clear? so reaction of two metals and something new can be produced. see first part, iron plus ऑक्सीजन गिव रस्ट। अब ये आपको पता होगा किस चीज में, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो व्हाट विल फॉर्म, रस्ट। आपने देखा होगा कोई भी चीज जो आयरन की बनी हुई होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है, ओके, जंग लग जाता है। ये तो आपको पता ही है। ओके, एंड दैट इट इज कॉल्ड रस्ट। समझ में आ गया? तो when iron will come in contact with oxygen, then rust will be formed. Clear? अब ये रस्ट कहाँ पे आएगा, आयरन के सरफेस पे। कहाँ पे आएगा, on surface of iron. Clear? रस्ट कहाँ पे आएगा, सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर पे जो दरवाजे हैं
ओके, किसके, आयरन के होने चाहिए। सो वहां पे दरवाजे में क्या होता है, रस्ट, रस्ट मतलब जंग लग जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने उसको पेंट करते हैं, आपने देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सुना, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स रस्ट। सो दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स रस्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सी ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, बट हियर वी विल डिस्कस ओनली one equation. Now the remaining part we will discuss, okay, in the next chapter. Now see, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. See student, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में है, मैग्नीशियम की रिबिन है हमारे पास। क्या है मैग्नीशियम की रिबिन? वेल, मैग्नीशियम रिबन will come in a quantity of oxygen. Okay, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, बर्न मतलब जलाएंगे, और कोई भी चीज कब जलेगी, when come in a contact with oxygen, magnesium will come in a contact with oxygen, then what we will produce, magnesium oxide. Clear? मैंने आपको पहले बता दिया, देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O2, then what will produce, magnesium oxide, MgO. This is the symbol of magnesium oxide. Clear? Now see student, in the lower standard, in the previous class 7th standard, you have studied about acid base. Okay, now here we will discuss about the acidic and basic property of magnesium oxide. See students, यहाँ पे magnesium oxide कौन से फॉर्म में होगा, एसिडिक नेचर में होगा कि बेसिक नेचर में होगा, that we will discuss. Now how to find out the acidic and basic properties of metal? See, first part, Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। अब यहाँ भी जो MgO मिलेगा, ये कौन सा फॉर्म में मिलेगा हमें, ऐश के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में मिलेगा हमें, ऐश के फॉर्म में ना। ये तो आपको पता नहीं क्या होता है। ओके, ना व्हाट वी विल डू, वी विल डिसॉल्व। ये जो पार्ट है ऐश, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पानी में मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, ऐश डिसॉल्व इन वाटर। सबसे पहले हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ MgO. MgO means magnesium oxide. So student, हो गया ना। what we have to do, magnesium oxide dissolve in water. See, dissolve का मतलब क्या होता है, पानी में मिक्स करना। क्लियर? डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, पानी में मिक्स करना। तो ये जो MgO हमें मिलेगा, वो कौन से फॉर्म में मिलेगा, ऐश। ऐश मतलब राख, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी में मिक्स करेंगे। तो जब हम पानी में इसको मिक्स करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज लिटमस पेपर। अब ये वाला भी लिटमस पेपर जो, ओके, ये आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, लिटमस पेपर क्या होता है। ओके, so now we will use litmus paper. अब हमें क्या करना है, litmus paper, ओके, ब्लू litmus paper और रेड litmus paper। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, we have to use that litmus paper और see, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। This is a glass, for example, okay, this is a glass, and in glass what we have taken, ash. Okay, this is the ash. Ash and water we have mixed. Okay, this is a mixture of ash and water. Now what we will do? We will take the litmus paper. So now if we take blue litmus paper, okay? So अगर यहाँ पे क्या करना है, blue litmus
लिटमस पेपर का यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लू लिटमस, अगर if the color can be changed from blue litmus paper to red, then it is acidic nature. But if we use red litmus, and which color can be changed? Red litmus can turn to blue, then it is basic नेचर। सो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन बताई है, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी। अभी हमने कंफर्म नहीं किया कि ये जो MgO होगा, ओके, ये क्या है हमारा, ओके, MgO सो ओके, अभी हमने कंफर्म नहीं किया कि ये कौन सा नेचर होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि क्या। सो ब्लू लिटमस अगर यूज करेंगे, अगर ब्लू litmus can turn to red, then it is acidic. If red litmus turns to blue, it is basic. So स्टूडेंट यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका लिखिएगा। अगर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक होगा, समझ में आ गया। अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक होगा, क्लियर। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये होगा क्या। सो स्टूडेंट यहाँ पे जब ब्लू लिटमस को इंसर्ट करेंगे तो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, बट जब रेड लिटमस को इसके अंदर, दिस इज द लिटमस पेपर, जब रेड लिटमस पेपर को इंसर्ट करेंगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा नेचर होगा, ब्लू लिटमस टू रेड, ओके, सॉरी ये ना रेड लिटमस टू ब्लू आएगा। सो रेड लिटमस टू ब्लू, यहाँ पे क्या कन्वर्ट होगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो इसका नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका नेचर होगा बेसिक नेचर होगा, क्लियर। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, if we will use the litmus paper, then red litmus will turn into blue. जब ब्लू में कन्वर्ट होगा तो नेचर क्या होगा उसका नेचर होगा बेसिक, क्लियर स्टूडेंट। सी मैंने आपको याद करने के लिए दिया हुआ है, आपको ये रीड कर लेना है बहुत अच्छे से, इससे आपको भूलना नहीं है। क्या है, अगर लिटमस पेपर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होगा तो एसिडिक होगा, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक होगा, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। सो नाउ हियर द फर्स्ट पार्ट, which first part, metal, the physical property and chemical property of metal we have discussed, students, clear now, the physical and chemical property of metal we have discussed. Now after completing this first part, in the second part what we are going to discuss, in the second part we will discuss about some name of the element. So second part में मैं आपको सिखाऊंगा name of the element, name up to 20 and symbols. जय हिंद स्टूडेंट्स।